Students, our today's topic is galvanic or voltaic cell. We are going to see the details of galvanic or voltaic cell, and then after we'll going to see the salt bridge, and then we'll see the formation of a short notation of a galvanic cell. Let's start the galvanic cell. See here, galvanic cell is a type of electrochemical cell which convert chemical energy into electrical energy. Understood? The galvanic cell is a type of electrolyte where electricity is generated from spontaneous chemical reaction. It means we can say that the chemical energy is converted into electrical energy. समझ रहे हैं ना? लास्ट टाइम हमने जो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वियस NaCl पढ़ा था, जिसमें क्या हो रहा था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी. Here chemical energy is converted into electrical energy. Let's see the setup of a galvanic cell. You can see on the screen galvanic cell का setup है, जहाँ पे here the galvanic cell और voltaic cell contains two half cell. दो half cell होते हैं. Understood? Each half cell consists of a metal plate deep in its solution of its own ion of a known concentration. Understood? This galvanic cell contains the two half cell. Each half cell is consist of a metal plate. Metal plate generally act as what? Electrode over there. So metal plate deep in its own solution of a known concentration. ठीक है. Now the two half cells are combined together in the form of, to form the galvanic cell by using a salt bridge. Whatever the two half cells are there, but obvious एक half cell क्या होगा? Oxidation half cell और दूसरा होगा reduction half cell. So both the half cells are combined together with the help of a salt bridge. जो भी metal plate है which act as electrode over there, anode and cathode, they are connected to the voltmeter with the help of conducting wires over there. Understood? They are connected to the voltmeter through the conducting wires, and उसका role क्या है? For the transfer of electron between them. Understood, guys? So this is the overall description of a galvanic cell. You can see on the screen with the help of a diagram we can explain. Here you see the two half cell, one half cell, second half cell. First half cell जहाँ पे ZnSO4 solution है, 1 molar ZnSO4 solution, and the second half cell blue color का solution दिख रहा है, that is 1 molar CuSO4 solution. Okay, zinc half cell and the copper half cell. Zinc half cell is a anode over here, copper half cell is a कैथोड ओवर हियर. अंडरस्टूड? अब जिंक हाफ सेल में आपको क्या दिख रहा है कि वो जो बीकर है उसमें कलरलेस सोल्यूशन और या फिर ग्रेइश सोल्यूशन दिखाया है यहाँ पे, दैट इज ZnSO4 सोल्यूशन. अंडरस्टूड? उसमें जिंक प्लेट डीप्ड है, करेक्ट? तो जिंक प्लेट हो गया यहाँ पे एनोड. सेकेंड हाफ सेल में ब्लू कलर का सोल्यूशन, बीकर कंटेनिंग ब्लू कलर सोल्यूशन. अंडरस्टूड? जिसमें 1 मोलर CuSO4 सोल्यूशन है, बट ऑब्वियस जिसमें कॉपर प्लेट इज डिप्ड ओवर दैट. कॉपर इज कैथोड ओवर हियर. जिंक एनोड इज नेगेटिवली चार्ज, कॉपर एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज. अब जो दोनों हाफ सेल हैं उनको कनेक्ट किया गया है बाय पुटिंग इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब. यू शेप की एक ट्यूब है यहाँ पे, जहाँ पे KCl ऐसा कुछ लिखा है, K प्लस आयंस, Cl माइनस आयंस. सो दिस यू शेप ट्यूब कनेक्ट द टू हाफ सेल. अब ये जो कनेक्ट कर रहा है दोनों हाफ सेल को, उसको कहा जाता है सॉल्ट ब्रिज. अंडरस्टूड? दिस आर सेड टू बी दी सॉल्ट ब्रिज. एंड फाइनली द टू इलेक्ट्रोड, ये जो इलेक्ट्रोड है ये कनेक्ट होते हैं विद ईच अदर विद द हेल्प ऑफ अ कंडक्टिंग वायर्स थ्रू द वोल्टमीटर. सेंटर में जो स्क्वायर बॉक्स दिख रहा है आपको, ओके, सो दैट इज द वोल्टमीटर. अब वोल्टमीटर और कनेक्ट दिस वन कनेक्टिंग वायर्स, इट मे बी ऑफ कॉपर और एल्यूमिनियम, जनरली कॉपर का होते हैं, तो वो वायर से इलेक्ट्रोड कनेक्ट किए हुए हैं. सो दिस इज बेसिकली ओवरऑल सेटअप ऑफ दिस galvanic cell, or you can say the voltaic cell. Understood, guys? अब यहाँ पे आपको in the textbook the diagram is not given. ये मैंने diagram यहाँ पे रखा है, but just it is for your understanding only. So बस just याद रखना कि this galvanic और voltaic cell convert the chemical energy into electrical energy. जहाँ पे दो हाफ सेल रहते हैं, एक हाफ सेल है ऑक्सीडेशन हाफ सेल, दूसरा होता है रिडक्शन हाफ सेल, करेक्ट? यहाँ पे पर्टिकुलरली इन दिस डायग्राम ऑक्सीडेशन हाफ सेल इज अ जिंक हाफ सेल, जहाँ पे एक कंटेनर है कंटेनिंग ZnSO4 सोल्यूशन, जिसमें जिंक रॉड प्लेस किया हुआ है. सेकेंड हाफ सेल इज अ रिडक्शन हाफ सेल विच इज़ नथिंग बट अ CuSO4 सेल कंटेनिंग CuSO4 सोल्यूशन, जिसमें प्लेस है कॉपर प्लेट. यहाँ पे जिंक एंड कॉपर दोनों इलेक्ट्रोड है.
जो जिंक है वो एनोड एंड कॉपर है वो कैथोड, एंड बट ऑफ वी ऑल नो दैट एट एनोड ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड एट कैथोड रिडक्शन रिएक्शन टेकिंग प्लेस। अब दोनों हाफ सेल को कनेक्ट किया है बाई पुटिंग इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब, जिसको कहेंगे सॉल्ट ब्रिज, अंडरस्टूड। और दोनों इलेक्ट्रोड हैं एनोड एंड कैथोड, वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं with the help of a conducting wires through the voltmeter, understood। So this is the overall setup of a galvanic और a voltaic cell। यहाँ पे जो पूरा पॉइंट्स है एक्सप्लेनेशन है एक्चुअली गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल का, अंडरस्टूड गाइस। तो इतना सिंपल सा पॉइंट है ये। आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे हमने देखा कि ये सॉल्ट ब्रिज है इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब। अब ये सॉल्ट ब्रिज कैसे फॉर्म किया जाता है, ओके, एट द सेम टाइम उसके फंक्शंस क्या है, दैट विल गोइंग टू सी ओवर हियर। See the salt bridge. In a galvanic cell, the two solutions are connected by a salt bridge. हमने देखा यहाँ पे ये जो दो सॉल्यूशन है आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, both the solutions are connected with each other by putting a salt bridge over there, ठीक है। सो सॉल्ट ब्रिज का काम ये है कि दो हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल है, उन दोनों हाफ सेल को कनेक्ट करना। अब कनेक्ट करने के बाद क्या हो जाएगा, वो एक कंप्लीट सेल बन जाएगा, अंडरस्टूड, वो एक कंप्लीट सेल बन जाएगा। अदरवाइज एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, एक रिडक्शन हाफ सेल है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल ऑक्सीडेशन रिएक्शन करेगा, रिडक्शन हाफ सेल रिडक्शन रिएक्शन करेगा, बट दोनों अगर सेल हम लोग कंबाइन नहीं करेंगे देन इट वोंट बी सेड एज अ गैल्वेनिक सेल, क्योंकि गैल्वेनिक सेल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड रिडक्शन हाफ सेल, अंडरस्टूड ना। गैल्वेनिक सेल या क्या है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड दी रिडक्शन हाफ सेल। जब तक हम उन दोनों को कनेक्ट नहीं करते तब तक हम वो दोनों वो कॉम्बिनेशन को गैल्वेनिक सेल नहीं बोला जाएगा, और वो कंबाइन करने का काम करता है सॉल्ट ब्रिज। सो इन अ गैल्वेनिक सेल द टू सॉल्यूशंस आर कनेक्टेड बाय अ सॉल्ट ब्रिज। अब एग्जैक्टली सॉल्ट ब्रिज क्या है, सी इट इज़ अ यू शेप ट्यूब salt bridge containing saturated solution of a inert electrolyte such as KCl or NH4NO3। क्या है ये सॉल्ट ब्रिज, इट इज़ अ यू शेप ट्यूब containing saturated solution of inert electrolyte like KCl, inert electrolyte क्योंकि ये react नहीं होते in this reaction only or in this oxidation and reduction reaction। So saturated solution of inert electrolyte like KCl और NH4NO3, और जिसमें 5% अगर सोल्यूशन भी रहता है, अंडरस्टूड, 5% अगर सोल्यूशन भी रहता है, ठीक है। दिस आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डू नॉट रिएक्ट विद द आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन और द इलेक्ट्रोड। जो भी ये इलेक्ट्रोलाइट है यानी KCl इवन NH4NO3, ये these are said to be the inert electrolyte because they are not going to react with the electrode or with the electrolytic solution। इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है आपकी, उसमें से भी रिएक्ट नहीं होगा, इवन इलेक्ट्रोड को भी रिएक्ट नहीं करेगा, अंडरस्टूड। सो दिस इज द ओवरऑल सेट ऑफ अ सॉल्ट ब्रिज। अब आप यहाँ पे डायग्राम देख लो, सो आई थिंक यू कम टू नो अबाउट द सॉल्ट ब्रिज, जहाँ पे आपको एक कंटेनर है, सी दैट यू शेप ट्यूब वी नीड टू कीप इनटू द स्पेसिफिक सोल्यूशन, इसीलिए वो एक कंटेनर में बीकर में एक सोल्यूशन बताया। तो बीकर में जनरली वाटर रखते हैं हम लोग इन रेगुलर प्रैक्टिस। समझ लो बीकर है जिसमें वाटर है और उसमें वो सॉल्ट ब्रिज रखा हुआ है, अंडरस्टूड। अब वो सॉल्ट ब्रिज है तो यू शेप ट्यूब है, ओके। यहाँ पे इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब, उल्टा यू दिख रहा है, जहाँ पे वो यू शेप ट्यूब को हम लोग फील कर सकते हैं फ्रॉम द टू ओपनिंग, ग्लास वूल प्लग दिखा है ना, तो वहाँ से वो दो ओपनिंग रहेगी, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट टू ओपनिंग ओनली वी कैन एक्चुअली फील दैट सैचुरेटेड KCl सॉल्यूशन अलॉन्ग विद द अगार जेल, अंडरस्टूड। सैचुरेटेड KCl सॉल्यूशन बनाना है हमें, अगार जेल बनाना है। अगार इज अ टाइप ऑफ ए जेल विच हेल्प टू ट्रांसपोर्ट द इलेक्ट्रॉन एक्चुअली, तो वो अगार जेल ले रहा है, सैचुरेटेड KCl सॉल्यूशन ले रहा है, ओके। जेल करके फिर उसको फील कर देना, और फिर करके वो ग्लास वूल प्लग हो वो आप उसमें पुट कर सकते हो, जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इजीली हो सकता है। और वो अगार जेल या व्हाट वी कैन से वो ड्राई ना हो जाए, या फिर सैचुरेटेड KCl सॉल्यूशन ड्राई ना हो जाए, इसीलिए उसको फिर हम लोग उल्टा करके सोल्यूशन में वाटर में रखते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, अंडरस्टूड। सो बीकर में वाटर है एंड वाटर and that whole setup containing salt bridge only, understood guys। so this is the overall setup of salt bridge। बच्चों salt bridge के ऊपर previously बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है कि what is salt bridge, draw the diagram of salt bridge, और what are the functions of salt bridge। तो ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब सॉल्ट ब्रिज के फंक्शंस क्या है, सी देयर आर टोटल 3 फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज।
पहला है इट प्रोवाइड एन इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन टू सोल्यूशन एंड देयर बाय कंप्लीट द इलेक्ट्रिकल सर्किट। ओके, क्या है ये? सॉल्ट ब्रिज प्रोवाइड द इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू सोल्यूशन। जैसे ही हम लोग ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल में सॉल्ट ब्रिज पुट करते हैं तो वो फिर इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट हो जाता है दोनों के बीच में। अंडरस्टूड? इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट हो जाएगा एनोड एंड कैथोड सेल में। दैट्स वाई हम लोग कहेंगे कि द होल सेल इज़ गोइंग टू बी कंप्लीटेड और होल इलेक्ट्रिकल सर्किट इज़ कंप्लीट, क्योंकि एनोड इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, कैथोड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। अगर बीच में सॉल्ट ब्रिज ही नहीं है, फॉर एग्जांपल, कैथोड तो वहाँ पे रेडी है टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, एनोड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ने लूज भी कर लिया, उसने डोनेट भी कर लिया, बट देर इज़ नो एनी सर्टन वे टू ट्रांसपोर्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनोड टू कैथोड। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? एनोड इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया यहाँ पे, कैथोड वहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेने के लिए भी रेडी है, बट समहाउ कोई कनेक्शन ही नहीं है जिससे कि एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो फिर हम लोग कहेंगे कि वो सेल कंप्लीट ही नहीं है, गैल्वेनिक सेल है ही नहीं, सिर्फ दो हाफ सेल है, एक तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल। जैसे ही हम लोग दोनों हाफ सेल में या फिर दोनों सोल्यूशन में सॉल्ट ब्रिज पुट कर देंगे, देन वी कैन से दैट द सेल और द ओवरऑल सर्किट इज कंप्लीट। अंडरस्टूड? और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो सकता है। दिस इज द फर्स्ट फंक्शन। सेकेंड पॉइंट, इट प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ टू सोल्यूशन। दो जो सोल्यूशन है जहाँ पे हमने वो एग्जाम्पल देखा गैल्वेनिक सेल का, द फर्स्ट वन, मैं दिखा देता हूँ अगेन द डायग्राम। हियर द टू सोल्यूशन, एक ZnSO4 सोल्यूशन और दूसरा CuSO4 सोल्यूशन। ये दोनों सोल्यूशन मिक्स नहीं होने चाहिए। अगर मिक्स हो गए तो फिर वो गैल्वेनिक सेल नहीं रहेगा। बोथ द सोल्यूशन शुड बी सेपरेट। तो यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज क्या कर रहा है कि सॉल्ट ब्रिज प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ दिस टू सोल्यूशन। अंडरस्टूड? सॉल्ट ब्रिज हेल्पिंग फॉर द प्रिवेंशन ऑफ मिक्सिंग ऑफ अ टू सोल्यूशन ओवर हियर। तो ये एक और फंक्शन हो गया सॉल्ट ब्रिज का। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन बोथ द सोल्यूशन बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सॉल्ट ब्रिज जनरली मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, यानी कहाँ पे भी चार्जेस नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉन एनोड डोनेट करेगा उतने ही इलेक्ट्रॉन सॉल्ट ब्रिज पास करके फिर इट पुट इनटू द कैथोड। अंडरस्टूड? जितने भी इलेक्ट्रॉन एनोड डोनेट करेगा, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास थ्रू द कैथोड सॉल्ट ब्रिज एंड गोज टुवर्ड्स द कैथोड ओनली, यानी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी वहाँ पे बनी रहेगी। अंडरस्टूड गाइज? सो ये तीन फंक्शन है। फर्स्ट वन, इट प्रोवाइड द इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू सोल्यूशन and that's why the overall circuit or electrical circuit going to be completed. Second, it provide the mixing of two solution, and the second one, it generally simple term में हम लोग बोलेंगे तो it help to transport the ions or the electrons. So it maintain the electrical neutrality in both the solution by transfer of ions. Understood? So this is all about the function of a salt bridge. समझ गए? सॉल्ट ब्रिज इजी टॉपिक है, डिस्क्रिप्शन एग्जैक्टली उसका कंस्ट्रक्शन कैसे, डायग्राम एंड द फंक्शंस दैट वी नीड टू रिमेंबर। अंडरस्टूड गाइज? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। फॉर्मेशन ऑफ अ शॉर्ट नोटेशन ऑफ अ गैल्वेनिक सेल। हमने गाइज पढ़ा स्टार्टिंग में गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल कैसा है? तो टू हाफ सेल है, दो हाफ सेल में सोल्यूशन और उनके दो इलेक्ट्रोड्स, दोनों हाफ सेल को सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट किया जाएगा। दो जो इलेक्ट्रोड है हाफ सेल के उसको कंडक्टिंग वायर्स से लेके फिर वो वोल्टमीटर तक कनेक्ट किया जाएगा। इतना पूरा सेटअप होने के बाद ये सर्किट पूरा हो गया। करेक्ट? उतना डायग्राम और उसका एक्सप्लेनेशन ये सब करना है। अगर हम एक सिंगल लाइन में दिस वन गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट करना है, अंडरस्टूड? इफ़ वी वांट टू रिप्रेजेंट अ गैल्वेनिक सेल इन अ सिंगल लाइन, ना तो मुझे डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, ना तो मुझे वो पूरा कंस्ट्रक्शन उसका कैसा है वो लिखना पड़ेगा। अगर सिंगल लाइन में मुझे अगर गैल्वेनिक सेल लिखना है, देन आई हैव टू यूज़ द शॉर्ट नोटेशन और सम ऑफ द रूल्स with the help of which we can actually represent the Daniell cell or galvanic cell in a single line in a short notation. तो यहाँ पे एक्चुअल में हम लोग ये देखने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ शॉर्ट नोटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल में कि किस तरह से रूल अप्लाई करके। ओके, रूल्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट एक्चुअली, ये आपको याद रखने की भी ज़रूरत याद रखना है, बट नॉट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि आपको डैनियल सेल ही रिप्रेजेंट करना होता है। सो जस्ट रिमेंबर द रूल्स ओनली। ये आपको एग्जाम में तो नहीं आएगा, बट विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन रिप्रेजेंट द डैनियल सेल या फिर एनी गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल। अंडरस्टूड गाइस? तो सिंपल से रूल है, देखो अ गैल्वेनिक सेल क्या, इट रिप्रेजेंट्स बाय अ फॉर्मूला और अ शॉर्ट नोटेशन दैट इंक्लूड इलेक्ट्रोड, aqueous solution of ions and other species which may or may not be involved in the cell reaction.
ओके, डैनियल सेल में या फिर सॉरी गैल्वेनिक सेल में, डैनियल सेल इज एग्जांपल ऑफ अ गैल्वेनिक सेल, इनफैक्ट जो मैंने एग्जांपल डायग्राम रखा था वो डैनियल सेल का था। सो हियर द गैल्वेनिक सेल में क्या होगा, एक तो होंगे इलेक्ट्रोड, दूसरा होगा एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ इट्स आयन, और अदर स्पीसीज हो सकते हैं, मे बी इन्वॉल्व और मे नॉट बी इन्वॉल्व इन द सेल रिएक्शन। तो ये सारे जो रिप्रेजेंट करने के लिए रूल है जो कि हम लोग अभी पढ़ेंगे। द फर्स्ट रूल, सी हियर द मेटल प्लेट, द मेटल प्लेट और द इनर्ट इलेक्ट्रोड आर डिनोटेड बाई वर्टिकल लाइन। यहाँ पे मेटल प्लेट है, आपने देखा गैल्वेनिक सेल में मेटल प्लेट, तो मेटल प्लेट और इनर्ट इलेक्ट्रोड आर डोनेटेड बाई दी डिनोटेड बाई वर्टिकल लाइन। एक सिंगल वर्टिकल लाइन से हमें ये मेटल प्लेट डिनोट करना है। अंडरस्टूड। द एनोड नेगेटिवली चार्ज इज रिटन ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट, एनोड को लेफ्ट साइड में लिखना है, एंड कैथोड को दैट इज हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज ऑन द एक्सट्रीम राइट, यानी कैथोड को राइट साइड में लिखना है। अंडरस्टूड। मेटल प्लेट जो है इन द गैल्वेनिक सेल वो किससे रिप्रेजेंट करेंगे, बाय पुटिंग अ सिंगल वर्टिकल लाइन, सीधी लाइन ड्रॉ करना है। इट इंडिकेट्स दी मेटल प्लेट या फिर इलेक्ट्रोड, जिसमें एनोड को आपको रखना है ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड एंड कैथोड को आपको रखना है ऑन दी राइट हैंड साइड। अंडरस्टूड। एनोड लेफ्ट हैंड और कैथोड को राइट हैंड साइड। बच्चों ये रूल्स के बाद एक बार मैं रूल एक्सप्लेन कर लूँ, उसके बाद कैसे एक एग्जाम्पल मैंने रखा है एट दी एंड, जिससे आपको आइडिया मिल जाएगी कि रूल अप्लाई करके सेल कैसे लिखा है। नेक्स्ट वन, द insoluble species if any or gases are placed in the interior position adjacent to the metal plate। कोई भी insoluble substance है समझ लो, ओके, या फिर गैस है तो फिर वो प्लेस करना है एग्जैक्टली एडजेसेंट टू दी मेटल इलेक्ट्रोड, मेटल इलेक्ट्रोड के एग्जैक्टली पास में ही उसको प्लेस कर देना है। इफ़ द गैस इज देयर, और कोई इंसॉल्युबल सब्सटेंस यानी समझो AgCl है, दैट इज स्पेरिंगली सॉल्युबल एक्चुअली, तो उसको इलेक्ट्रोड के पास ही रखते हैं। अंडरस्टूड। ये याद रखना है, सिर्फ इंसॉल्युबल सब्सटेंस या फिर गैस होगा, वी नीड टू प्लेस दैट सब्सटेंस जस्ट एडजेसेंट टू दी मेटल इलेक्ट्रोड ओनली। नाउ द नेक्स्ट वन इज द एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ आयंस आर प्लेस एट द मिडल ऑफ द सेल फॉर्मूला। जो हम लोग लिखेंगे एक सिंगल लाइन में, तो एकदम दो कॉर्नर में तो हमने दो मेटल प्लेट रख दिए, दोनों इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिंगल वर्टिकल लाइन एक्चुअली, एनोड एट द लेफ्ट, कैथोड एट द राइट। अब सेंटर में क्या होगा, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में यानी वर्टिकल लाइन के बीच में आपका उसका एक्वियस सोल्यूशन, जो भी एक्वियस सोल्यूशन होगा वो हमें प्लेस करना है इन द मिडल ऑफ द फार्मूला। अंडरस्टूड। जो भी है सोल्यूशन, जैसे हमने आगे वाला एग्जांपल देखा था डैनियल सेल का, जहाँ पे ZnSO4 सोल्यूशन था और CuSO4 सोल्यूशन था। ZnSO4 सोल्यूशन में Zn2+ आयंस, CuSO4 सोल्यूशन में Cu2+ आयंस, तो दोनों प्लेस करेंगे हम लोग in the center. Next, a single vertical line between two phase indicates that phase boundary। जो सिंगल वर्टिकल लाइन है बिटवीन द टू फेज वो डायरेक्टली फेज बाउंड्री इंडिकेट कर रही है, यानी देयर इट इंडिकेटिंग द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन देमसेल्व्स। अंडरस्टूड। इट इंडिकेटिंग व्हाट, द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन देमसेल्व्स। एंड अ डबल वर्टिकल लाइन, जो अगर डबल वर्टिकल लाइन है, सो द टू सॉल्यूशंस इंडिकेटेड दैट दे आर कनेक्टेड बाय अ सॉल्ट ब्रिज। अब आपको सर डैनियल सेल में या फिर गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल में सॉल्ट ब्रिज था, तो सॉल्ट ब्रिज कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बाय पुटिंग अ डबल वर्टिकल लाइन। अंडरस्टूड। The additional information such as concentration of solution and gases pressure is also given। जो भी आपका solution अगर होगा या फिर गैस होगा तो उसका additional information, solution का concentration या फिर गैस का pressure वो आपको mention करना होगा वहाँ पे। Understood? And here the single half cell is written in the order, सिंगल हाफ सेल कोई भी होगा, रिडक्शन सेल होगा या फिर ऑक्सीडेशन होगा, तो इसकी किस ऑर्डर में लिखेंगे, देखो एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ इट्स आयन एंड देन सॉलिड इलेक्ट्रोड। जैसे एक्वियस सॉल्यूशन देखो Zn2+ आयंस, उसमें ब्रैकेट में 1m लिखा है, ब्रैकेट में 1m यानी वो कॉन्सेंट्रेशन है Zn2+ आयंस का। अंडरस्टूड। ZnSO4 सॉल्यूशन जिसमें Zn2+ आयंस है और उसका कॉन्सेंट्रेशन। सिंगल वर्टिकल लाइन यानी वो इलेक्ट्रोड और यू कैन से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, और जहाँ पे इलेक्ट्रोड का नाम Zn इन अ सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल है देखो, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन ओवर हियर, जहाँ पे Mg इन अ सॉलिड स्टेट सिंगल वर्टिकल लाइन है, फिर Mg2+ ब्रैकेट में 1 मोलार, डबल वर्टिकल लाइन, फिर Ag+ आयंस इन ब्रैकेट में 1 मोलार, सिंगल वर्टिकल लाइन, देन Ag इन अ सॉलिड स्टेट। तो ये जो है ये एक अपना गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल है, जहाँ पे हमारे पास एक दो इलेक्ट्रोड है, एक तो है Mg और दूसरा है Ag। Mg इज एनोड एंड Ag इज कैथोड, तो Mg को रख दिया हमने कहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड पे, Ag को रख दिया हमने राइट हैंड साइड पे। अंडरस्टूड।
अब Mg प्लेस है Mg2 प्लस आयन सोल्यूशन में और Ag प्लेस है Ag प्लस आयन सोल्यूशन में। तो देखो Mg के पास सिंगल वर्टिकल लाइन रख दिया, उसके बाद Mg2 प्लस आयन्स लिख दिया, अंडरस्टूड, 1 मोलार। फिर डबल वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, सॉल्ट ब्रिज, अंडरस्टूड। फिर यहाँ पे Ag प्लस आयन्स एंड देन Ag तो हमने लिखा ही था, तो एक सिंगल वर्टिकल लाइन और सेंटर, वहाँ पे सेंटर में लिखना है Ag प्लस। तो इस तरह से हम लोग देखो मेटल इलेक्ट्रोड, इट्स आयोनिक सॉल्यूशन, सॉल्ट ब्रिज, आयोनिक सॉल्यूशन एंड द मेटल इलेक्ट्रोड। देखो मैं रिपीट कर रहा हूँ, मेटल इलेक्ट्रोड वर्टिकल लाइन लिखना है एंड इट्स आयोनिक सॉल्यूशन, वर्टिकल लाइन इंडिकेटिंग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ इलेक्ट्रोड एंड इट्स आयोनिक सॉल्यूशन। फिर डबल वर्टिकल लाइन इंडिकेटिंग सॉल्ट ब्रिज, फिर आयोनिक सॉल्यूशन, वर्टिकल लाइन एंड मेटल इलेक्ट्रोड, अंडरस्टूड। तो इस सीक्वेंस में हमें जाना है टू रिप्रेजेंट द गैल्वेनिक सेल। गाइस हम लोग और नंबर ऑफ एग्जांपल्स देखेंगे, सो यू मे गेट मोर एंड मोर आइडिया अबाउट दिस। सारे रूल्स को अच्छे से पढ़ लेना है, ट्राई टू रिमेंबर ऑल द रूल ओनली, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल वगैरह करेंगे तो हमें सेल रिप्रेजेंट करना होगा, तो सेल रिप्रेजेंट करने के बाद हम लोग वही रूल अप्लाई करके वो सेल लिखेंगे। ओके गाइस, थैंक यू।